Alkanes, alkenes, and alkynes are classified as organic compounds. This is because they all given options में से जो correct answer है वो है option A, that is they all are hydrocarbons. As you know, hydrocarbons are those compounds which are made up of only carbon and hydrogen elements. Means A is the correct answer. Option B, they all are saturated molecules, incorrect है. Alkenes saturated है, alkenes और alkynes unsaturated molecules हैं. They all have high melting points, incorrect है. इनका usually melting point low होता है. They have high rate of reaction, incorrect है. इनका rate of reaction high नहीं होता है. That's why option A, they are classified as organic compounds. This is because they all are hydrocarbons is the correct answer. Nonane is an alkane containing 9 carbon atoms per molecule. The molecular formula of nonane is, alkane का जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 2. N क्या है 9, क्योंकि हमें गिवन है 9 कार्बन एटम्स. अगर नहीं भी दिए हो तो आपको याद होने चाहिए, और यहाँ पे भी सब जगह 9 ही है. जस्ट पुट n = 9. 9 2 ज़ा 18 + 2 20. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी, दैट इज C9H20 is the correct answer. The IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry, name of the given organic compound is. हमें इस कंपाउंड का नेम पहचानना है. सवाल ये पैदा होता है कि हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें या फिर राइट हैंड साइड से. हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, इसलिए हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है. अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा, तो हम 1 को प्रेफर करेंगे. दैट्स वाई 1 और 3 शॉर्ट लिस्ट हो जाता. ठीक है, अब चूंकि 2 डबल बॉन्ड्स है इसलिए हमें डाई का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है 1,3 पेंटाडाइन. मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. Under normal conditions, alkanes do not react with strong oxidizing agents such as potassium permanganate KMnO4. This is because of all the following reasons except that alkanes have non-polar bonds, alkanes give substitution reactions, alkanes are saturated hydrocarbons. ये तमाम रीजंस है जिसकी वजह से अल्केन्स रिएक्ट नहीं करते स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, एक्सेप्ट they are soluble in polar solvents. Means D is the correct answer. As you know, alkenes are non-polar, therefore they are insoluble in water and polar solvents but soluble in organic solvents. Means D is the correct answer. C2H5OH, that is ethanol, can be converted into ethene C2H4 by the process of given option reduction, dehydration, neutralization, polymerization. में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, dehydration. Means B is the correct answer. As you know, dehydration is removal of water. Ethene is prepared by heating a mixture of ethanol and excess of concentrated sulfuric acid at 180 degrees centigrade. In first step, ethyl hydrogen sulfate is formed, which decomposes on heating to produce ethene, which is collected over water. Means option B, dehydration is the correct answer. Next question. The structural formula of 3-pentene 1-ine is. इन से हमने पहचाना एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, आइन से हमने पहचाना एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. तो हमें ऐसे आंसर शॉर्टलिस्ट करने थे जिसमें हमें एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड नज़र आए. तो इसलिए बी और डी शॉर्टलिस्ट हो जाते. ए और सी रिजेक्ट हो जाते. क्यों? क्योंकि ए में 2 डबल बॉन्ड्स है और सी में 2 ट्रिपल बॉन्ड है. बट हमें एक डबल बॉन्ड चाहिए और एक ट्रिपल बॉन्ड. हमें फर्स्ट पोजिशन पर ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन डी, जिसमें हमें फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड.
जबकि ऑप्शन बी में फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल, तो इस वजह से ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी का करेक्ट नेम होता 1 पेंटीन 3 आइन, जबकि हमसे कहा गया हमें पहचाना है 3 पेंटीन 1 आइन, तो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the complete combustion of methane in the presence of 2 moles of oxygen gas releases। complete combustion लिखा हुआ है इसलिए प्रोडक्ट्स होंगे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। the complete combustion of methane in the presence of 2 moles of oxygen gas releases 2 moles of water, 1 mole of carbon dioxide and heat, means C is the correct answer। Next question, which of the following reactants forms ethane on heating with zinc dust? As you know, when alkyl tetrahalides are heated with zinc dust, the elimination of halogen atoms takes place to form ethane। हमें सिर्फ ऑप्शन सी में ही 4 हेलोजन एटम्स नज़र आ रहे थे, दैट्स वाई सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी किसी भी ऑप्शन में हमें 4 हेलोजन एटम्स नज़र नहीं आते। ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में भी 2 है, ऑप्शन डी में 1 है। सिर्फ ऑप्शन सी में ही हमें 4 हेलोजन एटम्स नज़र आते, जिससे हमने आइडेंटिफाई किया सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5, मीन्स पेंटा इज शॉर्ट लिस्टेड। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें नंबरिंग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है या लेफ्ट हैंड साइड से। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ तो फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर मिलता है, और अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ तो फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर मिलता है। तो मैं प्रेफर करूँगी लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करना, दैट इज़ 1 2 3 4 5। फंक्शनल ग्रुप पोजिशन 1 और 3 पे, मीन्स 1 3 इज शॉर्ट लिस्टेड। 2 फंक्शनल ग्रुप है इसलिए डाई लिखेंगे, तो करेक्ट आंसर इज 1 3 पेंटाडाइन, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर, that is 1 3 pentadiene। Next question, the structural formula of 2-methyl 1-butene is। करेक्ट आंसर इज बी। ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मुझे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड चाहिए और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, जो करेक्टली ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में हमें 2 ब्रांचिंग नज़र आ रही है मिथाइल की, और हमें क्या चाहिए, एक ही ब्रांच चाहिए, इस वजह से ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी में हमें सेकंड पोजीशन पे मिथाइल नहीं मिल रहा, थर्ड पे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो 1 2 3, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जो करेक्टली शो कर रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2-methyl 1-ब्यूटीन की। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, means B is the correct answer। Next question, when alkenes react with KMnO4 potassium permanganate, decolorization of pink color occurs। This is because the double bond electrons react with given options में से जो correct answer है वो है option A, means A is the right answer। As you know, alkene decolorize the pink color of acidified dilute solution of potassium permanganate because the double bond electrons react with MnO4 negative ion, which further goes on to form MnO2 and of ethene glycol, that is 1,2-ethane diol। That's why option A is the correct answer। Next question, the IUPAC name of the given organic compound is। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। मैंने इस तरह सेलेक्ट किए, आप चाहो तो इस तरह भी सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, या फिर इस तरह, या फिर इस तरह, या फिर इस तरह। हर सूरत में हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन आइटम्स आ रहे हैं, मीन्स हेक्सा क्या हो जाता है, शॉर्ट लिस्ट हो जाता।
अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं या लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, ब्रांचिंग के ऊपर डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, इसलिए नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6। एक मिथाइल की ब्रांच 2 पे है और 2 5 पे, दैट्स वाई 2 5 5। ट्राई मिथाइल 2 हेक्सिन 2 क्यों, क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड है, इज शॉर्ट लिस्टेड, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substances will decolorize the pink color of acidified solution of potassium permanganate? आपको पता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स डीकलराइज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, और अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कौन कौन से, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना था कौन अल्कीन और अल्काइन है। ऑप्शन सी पेंटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। इतना क्विकली हम कैसे पहचानेंगे, जस्ट आप कंपेयर करें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स को। यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, हाइड्रोजन एटम डबल से भी ज़्यादा है, 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6 मीन्स डबल से ज़्यादा है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम डबल से ज़्यादा है, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8। यहाँ पे भी ज़्यादा है हाइड्रोजन एटम, दैट इज 7 2 ज़ा 14, 14 + 2 16, जबकि यहाँ पे डबल है। अगर हाइड्रोजन एटम डबल या डबल से कम है तो मीन्स कंपाउंड जो है वो अनसेचुरेटेड है, मीन्स ए बी डी एग्जाम्पल है सेचुरेटेड की, तो वो डीकलराइज नहीं करेंगे। सिर्फ ऑप्शन सी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी? वेजिटेबल ऑयल इज unsaturated, वनस्पति घी is saturated. As you know, hydrogenation means addition of molecular hydrogen to an unsaturated hydrocarbon in the presence of a catalyst nickel platinum to form saturated compound. That's why B hydrogenation is the correct answer. Means given options में जो correct answer है वो है option B, that is hydrogenation. Which of the following represents an unsaturated hydrocarbon? The hydrocarbons in which two carbon atoms are linked by a double or a triple bond are called unsaturated hydrocarbons. तो हम कैसे पहचानेंगे, जस्ट आप कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स को कंपेयर कर लो, जिसमें डबल या डबल से कम मिले वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए में कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 5 2 ज़ा 10 मीन्स 10 से भी ज़्यादा है, तो मीन्स ये सेचुरेटेड की एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी में कार्बन 7 है, 7 2 ज़ा 14 और हाइड्रोजन 14 से ज़्यादा है। और ऑप्शन डी में भी कार्बन 8 है, 8 2 ज़ा 16 और हमें हाइड्रोजन कितने नज़र आ रहे हैं, 16 से ज़्यादा। तो मीन्स ऑप्शन ए सी डी एग्जाम्पल है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। सिर्फ ऑप्शन बी जिसमें हमें 6 2 ज़ा 12 होता है, यहाँ पे 12 या 12 से कम नज़र आ रहे हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। जहाँ पे हमें डबल या डबल से कम नज़र आते हैं हाइड्रोजन एटम्स, वो होते हैं एग्जाम्पल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, इसलिए हमने शॉर्टलिस्ट किया बी। बहुत ईजी है, जस्ट आप कंपेयर कर लो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को, या फिर आप अल्केन और अल्कीन के फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके चेक कर लो, जो मेथड आपको ईजी लगे। मुझे डबल से कंपेयर करना ज़्यादा ईजी लगता है कि हम चेक कर लें, अगर डबल से ज़्यादा है तो मीन्स वो अल्कीन होंगे, डबल या डबल से कम है तो मीन्स वो अल्कीन या अल्काइन होंगे। तो ईजी था, डबल से कम है हाइड्रोजन एटम्स, दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन takes place when bromine reacts with. Substitution reaction is a chemical reaction in which an atom, ion or group of atoms or ions in molecule is replaced by another atom, ion or group. ऑप्शन ए में हमें डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी में भी, और ऑप्शन सी में हमें ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमें कौन से रिएक्शन मिलेंगे, एडिशन रिएक्शन। ऑप्शन डी में सारे बॉन्ड्स क्या है, सिंगल है, तो हमें ऑप्शन डी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा, दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट्स विद ईथेन substitution reaction takes place, means option D is the correct answer. Which of the following acids is produced by the oxidation of acetylene with alkaline potassium permanganate?
Acetylene, that is ethyne, is oxidized by alkaline KMnO4, that is potassium permanganate, to form oxalic acid. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट फॉर्मूला ऑक्सैलिक एसिड का रिप्रेजेंट कर रहा था वो ऑप्शन ए था. दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग molecular formulae is wrongly paired with its name. नेम्स गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है और हमें रॉन्गली पेयर्ड पहचानना है. ईथेन, हेप्टेन, नोनेन, डिकेन क्या है? अल्कीन्स है. अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2. जस्ट इस फार्मूले में आप n की वैल्यू पुट करें और फाइंड कर लें कि कौन सा रॉन्गली पेयर्ड है. ईथेन में n इज 2, तो C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 मीन्स C2H6, तो मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. ये हमारा आंसर नहीं है. ऑप्शन बी, n इज 7, जस्ट पुट n 7, 2 7 ज़ा 14, 14 + 2 16 और यहाँ पे कितना है 14 है. मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जो कि रॉन्गली पेयर्ड है. बाकी सारे ऑप्शंस भी करेक्ट है, हम उनको चेक कर लेते हैं. नोनेन में n क्या है? 9, C9, 2 9 ज़ा 18, 18 + 2 20 मीन्स ऑप्शन सी भी करेक्ट है. डिकेन में n क्या है? 10 है. C10, 10 2 ज़ा 20, 20 + 2 22 मीन्स ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करेक्ट है. रॉन्गली पेयर्ड ऑप्शन बी है. दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट forms ethyne? When alkyl tetrahalides are heated with zinc dust, the elimination of halogen atoms takes place to form ethyne. 4 हेलोजन एटम्स हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में नज़र आ रहे हैं. दैट्स वाई बी इज़ द करेक्ट आंसर. बाकी सारे ऑप्शंस में हमें या तो 2 या फिर 1 हेलोजन एटम नज़र आ रहा है. ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन सी में भी 2 और ऑप्शन डी में 1. सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में 4 हेलोजन एटम्स थे. दैट्स वाई बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड व्हेन मीथेन रिएक्ट्स exclusively with chlorine in direct sunlight? In direct sunlight, reaction is explosive and carbon is deposited. That's why A carbon is the correct answer. Means option A carbon is the correct answer. अगर आपको इक्वेशन याद होती तो आप आसानी से पहचान लेते. अदरवाइज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है, बैलेंस्ड करके भी आप पहचान सकते थे. 4 एटम हाइड्रोजन के, 4 एटम क्लोरीन के और 1 एटम कार्बन का रिएक्टेंट साइड पे मौजूद है. प्रोडक्ट साइड पे 4 एटम हाइड्रोजन के और 4 एटम क्लोरीन के. ओनली सी कार्बन इज लेफ्ट. ए कार्बन इज द करेक्ट आंसर. आइदर आपको इक्वेशन याद होती तो आप इस तरह पहचान लेते या फिर आप इक्वेशन को बैलेंस करके भी करेक्ट आंसर पहचान सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस will decolorize the pink color of acidified solution of potassium permanganate? Unsaturated compound will decolorize the pink color of acidified solution of potassium permanganate. तो हमें गिवन ऑप्शन में से अनसेचुरेटेड कंपाउंड पहचानना था. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो है पेंटीन अनसेचुरेटेड कंपाउंड. बट हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे पेपर में जल्दी से. यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? Carbon is 5, hydrogen is double, that is 10, not more than double. बट बाकी सारे ऑप्शंस में हाइड्रोजन कार्बन से मोर देन डबल है. ऑप्शन ए में कार्बन इज 2, अगर 2 का मैं डबल करूँ तो कितना होता है 4, बट यहाँ पे क्या है मोर देन डबल है. ऑप्शन बी में कार्बन इज 3, 3 2 ज़ा 6, हाइड्रोजन क्या है मोर देन डबल है. ऑप्शन डी में हाइड्रोजन कितने हैं 16 है, जो कार्बन से डबल से भी ज़्यादा है. कार्बन कितने 7, 7 2 ज़ा 14, 14 से भी ज़्यादा है. तो मीन्स ऑप्शन ए बी और डी कौन है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, मीन्स अल्कीन है. और अल्कीन डीकलराइज नहीं करते पोटेशियम परमैंगनेट को. अल्कीन और अल्काइन करते हैं. क्यों? क्योंकि वो अनसेचुरेटेड है. ऑप्शन सी में ही सिर्फ हमें डबल हाइड्रोजन मिल रहे, डबल से ज़्यादा नहीं.
तो दैट्स वाई C is the correct answer, that is C5H10. Next question, which of the following is the IUPAC, that is IUPAC, name of the given compound? सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, जैसे कि मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया। फिर हमें नंबरिंग देनी है। नंबरिंग हम कहाँ पे देंगे? जहाँ से हमारी ब्रांच को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो भी पोजीशन 2 पे ब्रांचिंग है। अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ तो भी पोजीशन 2 पे ब्रांच है। बट अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी जहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेस है। दैट्स वाई मैंने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की? अपने लेफ्ट हैंड साइड से। 1 2 3 4 5। कितनी ब्रांचिंग है? 1 2 3, और तीनों क्या है? मिथाइल है। दैट्स वाई ऑप्शन डी 2 2 4, 2 पे 2 और एक 4 पे, 2 2 4। कितने मिथाइल है? 3। ट्राई मिथाइल पेंटेन इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पेंटेन क्यों? क्योंकि मेरी मेन चेन के अंदर 5 एटम्स है कार्बन के। दैट्स वाई 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉस एंड डॉट फॉर्मूला ऑफ ब्यूटाइलिन? याद रहे ब्यूटाइलिन में BUTYLENE है। इसको ब्यूटाइन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ब्यूटाइन इज YNE, इट इज़ नॉट YNE, इट इज़ YLENE। ब्यूटाइलिन इज द सेकेंड नेम ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन इज C4H8, जिसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है और उसका फॉर्मूला भी C4H8 है। 1 2 3 4 कार्बन एटम्स और 8 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज नॉट ब्यूटाइलिन। कार्बन एटम्स तो 4 है बट हाइड्रोजन 6 है। ऑप्शन डी में भी हमें 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। और ऑप्शन बी इज C4H10, इट इज ब्यूटेन नॉट ब्यूटाइलिन। और ऑप्शन ए और बी ब्यूटाइन है, ब्यूटाइलिन नहीं है। ब्यूटाइलिन इज ब्यूटीन, C4H8, that's why option C is the correct answer. Next question, when alkenes react with potassium permanganate, that is KMnO4, decolorization of pink color occurs. This is because the double bond electrons react with permanganate ion, means option A is the correct answer. double bond के electrons किसके साथ react करते हैं? option A के साथ, that's why A is the correct answer. Next question, which of the following shows the molecular formula of pent1ene? Pent means N is 5, ENE, ene से हमने पहचाना। pent1ene is the example of alkene. Alkene का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, N is 5। जस्ट हमने इस फॉर्मूले में N की वैल्यू पुट कर दी, N की जगह 5 पुट कर दिया। C5H 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 10। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज C5H10 इज द करेक्ट आंसर, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC, दैट इज IUPAC सिस्टम? हमें इस कंपाउंड का नाम पहचानना है। सबसे पहले आप पेरेंट चेन पहचान लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इसको अटेम्प्ट करना। मैंने पेरेंट चेन को ग्रीन से हाईलाइट कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें या लेफ्ट हैंड साइड से। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करती हूँ तो डबल बॉन्ड को सेकेंड नंबर मिलता है। अगर मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो ब्रांच को नंबर 2 मिलता है। बट हम क्या करते हैं, ब्रांच के ऊपर डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट की। 1 2 3 4 5 6। मेरी पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 हैं, तो मीन्स हेक्सेन शॉर्टलिस्ट हो जाता। और किस पोजीशन पे ब्रांच है? 5 पे। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज 5 मिथाइल 2 हेक्सेन। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल की ब्रांच है, मीन्स ऑप्शन बी 5 मिथाइल 2 हेक्सेन इज द करेक्ट आंसर। Next question, which of the given characteristics of methane is considered important when it is used as a fuel? Used as a fuel
इज इम्पोर्टेंट कीवर्ड, इसको ध्यान में रख के कैरेक्टरिस्टिक पहचानी थी, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज इट बर्न्स एक्सोथर्मिकली, मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। एज अ फ्यूल बात हो रही थी, इसलिए ऑप्शन ए, बी और सी इरेलेवेंट है, मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when ethanol vapors are passed over hot aluminum oxide, it gives off ethene. Option C is the correct answer. Ethanol vapors are passed over hot aluminum oxide, it gives off ethene, means option C is the correct answer. Next question, which of the following is burnt in air to produce a smoky luminous oxyacetylene flame? Given option methane, butane, ethine, ethanol में से correct option C है, that is ethine. Ethine is burned in air to produce a smoky luminous oxyacetylene flame, means option C is the correct answer.